हेलो। 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 हाँ सर। ये अ, ज्योति सर, मेरी आवाज़ आ रही है? हाँ दीपक सर। हाँ ज्योति सर, आवाज़ मेरी आ रही है अब तक? हाँ, कार्यक्रम स्टार्ट कीजिए। प्रिंसिपल सर और माननीय वाइस चांसलर सर आ चुके हैं। हाँ, आवाज आ रही है। ठीक। ये आप म्यूट करें क्या? आप सभी को मेरा नमस्कार। आदर, अभिनंदन, आभार। मैं डॉक्टर दीपक कुमार, सहायक प्राध्यापक भूगोल विभाग, दाऊदनगर महाविद्यालय, आप सबका हमारे महाविद्यालय द्वारा आयोजित इस 2 दिवसीय वेबिनार में हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि वर्तमान समय में पूरा विश्व कोरोना वायरस के संक्रमण से उत्पन्न विषम परिस्थितियों से जूझ रहा है, जिसकी पहुंच में लगभग पूरा विश्व आ चुका है और आज पूरी मानव जाति का अस्तित्व खतरे में है। इसलिए हमारे इस राष्ट्रीय वेबिनार का मुख्य विषय भी इसी से जुड़ा है, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 पैंडेमिक इन रूरल इंडिया। और इसके अलावा जितने भी उप शीर्षक हैं इस वेबिनार के, वे भी इसी वैश्विक समस्या से जुड़े हैं। आज के स्वागत सत्र में अपनी गरिमामय उपस्थिति से हम सबका मान बढ़ाने के लिए मगध विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति महोदय, प्रख्यात शिक्षाविद एवं विद्वान माननीय कुलपति महोदय प्रोफेसर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हमारे बीच उपस्थित हैं। साथ ही हमारे महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर डॉक्टर एम.एस. इस्लाम सर भी आज हमारे बीच उपस्थित हैं और आज के मुख्य वक्ता प्रख्यात अर्थशास्त्री डॉक्टर भानु प्रताप सिंह भी हमारे बीच उपस्थित हैं। मैं चाहूँगा कि हमारे प्राचार्य महोदय डॉक्टर एम.एस. इस्लाम सर, जिनके आगमन से हमारा महाविद्यालय नित्य नए विकास की इबारतें लिख रहा है, अब माननीय कुलपति महोदय सर का स्वागत करते हुए 2 शब्द कहें और अपना आशीर्वचन हमें सुनाएं। धन्यवाद सर। Am I audible? Hello. यस सर। Yes, sir. Yes, sir. I would like to thank learned Honorable Vice Chancellor, sir, who has been kind enough to give his consent for being chief patron and also the chief guest of this webinar. His motivation led this webinar to happen. Actually, during the lockdown, he pioneered in online classes and conduct of webinar in Magad University, Bodh Gaya, and university became amongst 3 best performers in Bihar. I would also like to thank and welcome all the members of organizing team of Daudnagar College, Daudnagar, and also welcome all the participants. COVID-19 is currently a global issue. India will take over China in terms of number, but the rate continues to be low in India. I feel that there is need to understand the effect of this pandemic in rural area, as we have huge part of our population, that is 68.84% of total population of our country residing in rural area. The fight is all types. The battle is of all types. There is pandemic, either there is economic, psychological, or medical, educational. We need to study the effect of this pandemic on rural India. COVID-19 pandemic, also known as coronavirus pandemic, is caused by severe acute respiratory syndrome. The outbreak was first identified in Wuhan, China, in December 2019. The World Health Organization declared its outbreak as a pandemic on 11th March 1920. More than 4.37 million cases of COVID have been reported in 188 countries
and territories. A number of issues. In India, we are into of this pandemic on rural economy, agriculture, other major issues. The nationwide lockdown announced on 24th March 2020 has severely affected lives and livelihoods across rural India. The major source of livelihood in rural India is agriculture, poultry farming, cattle rearing, fish farming, small-scale industries, business, handloom products, etc. The nationwide lockdown has greatly affected the economy as well as livelihood of rural India due to concept of social distancing and this lockdown. Harvested crops were not properly treated. Also, in some cases, the crops were not harvested on time, thus wasting the crop also. Coming to education, the education system in rural area has been mismanaged and education got hampered at primary and high school level, majority due to lack of understanding of technology. In urban areas, we have seen the classes continue with online classes and lectures, but this was not available in rural areas. Whereas the college in rural areas, our college have handled the situation quite well, leading to no academic loss of college students. Amid this lockdown, there are rising issue of migrant workers and labor classes. Urban areas provide a number of opportunities of employment, so the labor class migrated to urban area with their families, but during the lockdown, left them no source of income, thus starving their families in towns and cities, which led to harsh decision of workers to travel miles and to go to their home. The effect of lockdown has adverse on this class. The central government has announced economic package to solve the issues of this most affected class. There are health issues also there. In rural areas, there is lack of facilities, can be sensed well, but we can also see that there is a strong willpower to defeat this virus as new channels have shown. Nurses, village coming up together to fight this pandemic. Hope we will surely be able to win this battle and we will save the entire nation from this pandemic. With these words, I request Honorable Vice Chancellor Sir to inaugurate this webinar and to give us his blessings. May I request now Honorable Vice Chancellor Sir, please. आप मुझे सुन पा रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. आप अनम्यूट कीजिए हमको तभी तो. ज्योतिष अनम्यूट कीजिए सर को. अनम्यूट है सर, सुन पा रहे हैं हम लोग सर आपकी बात. साफ आवाज आ रही है सर? जी सर. बिल्कुल आ रही है सर. Good afternoon, sir. Good afternoon. Can I start now? Yes, No, sir. sir. We listen all of you, sir. Okay, so I would start now. Okay. Welcome, sir. Thank you. Thank you, sir. मैं सबसे पहले तो दाऊद नगर महाविद्यालय परिवार को अपनी ओर से व्यक्तिगत रूप से और पूरे विश्वविद्यालय की ओर से बधाई देता हूं और अभिनंदन भी करता हूं कि उन्होंने कोविड-19 एंड इट्स इम्पैक्ट इन रूरल एरिया विषय पर यह वेबिनार आयोजित किया है. निश्चित रूप से वर्तमान में कोविड-19 ने सारी दुनिया को बुरी तरह से भयाक्रांत कर दिया है और भारत भी कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक, चाहे वो ग्रामीण अंचल हो, आदिवासी अंचल हो या शहरी अंचल, सब जगह कोविड-19 महामारी के संघात से बहुत सारे लोग प्रभावित हैं और बड़ी संख्या में
लोग मारे भी गए हैं और बहुत सारे लोग संक्रमित होने के कारण उनका इलाज किया जा रहा है। ऐसी परिस्थिति में इसके प्रभाव को देखते हुए जिस तरह से लॉकडाउन जो 25 मार्च से लेकर के अब तक चल रहा है और आगे 17 मई तक जो परिस्थितियां बनेगी उसके बाद विचार किया जाएगा लॉकडाउन फोर्स में कि आगे क्या किया जाए जिससे केंद्र और राज्य सरकार परस्पर सहयोग करते हुए जो जन समुदाय है, जो जनता है, उसके जान की रक्षा कर सके और साथ ही साथ जहान की रक्षा हो सके। बहुत सारे क्रियाकलाप जो पड़े हैं उनको हम कैसे पुनर्जीवित करें, यह बहुत बड़ी चुनौती है। खासतौर से लॉकडाउन के लोगों, महानगरों और औद्योगिक शहरों और औद्योगिक क्षेत्रों से बड़ी संख्या में थके हारे परिवार सहित पलायन करने वाले जो वो सब अपने गांवों की ओर रुख कर चुके हैं। बड़ी संख्या में वो वहां पहुंच चुके हैं। ऐसी दशकुशल, अर्धकुशल या अकुशल कामगार जिनके पास कोई रोजगार नहीं है, उनको कौशल जो प्रमुख बातें हैं वो सम्मिलित करते हुए आगे बढ़ना चाहता हूँ। मेरा कहना यह है कि जिस तरह से बड़ी संख्या में थके हारे कामगार गांवों की ओर रुख कर चुके हैं, उसको देखते हुए ग्रामीण अर्थव्यवस्था को ठीक से व्यवस्थित करने की जिम्मेदारी आज केंद्र और राज्य सरकारों के कंधों पर है और इसलिए कोऑपरेटिव फेडरलिज्म या आप कह सकते हैं कि केंद्र और राज्य परस्पर सहयोग से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को इस तरह से सुगठित करें, व्यवस्थित करें जिससे आने वाले दिन में ये जो राष्ट्र की मुख्य आर्थिक व्यवस्था है उसको वैकल्पिक व्यवस्था के रूप में मदद कर सके। आप सब जानते हैं कि इसको ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने 12 मई को एक विशेष आर्थिक पैकेज की घोषणा की और इस आर्थिक पैकेज में ग्रामीण भारत, कुटीर उद्योग, सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योग, किसान और मध्यम वर्ग सहित सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है। इसमें आत्मनिर्भरता के 5 पिलर्स को मजबूत करने के लिए लक्ष्य रखा गया है। इससे भारतीय अर्थव्यवस्था को एक बार नए सिरे से आगे बढ़ने के लिए व्यवस्था 5 जो महत्वपूर्ण बिंदु है उसमें पहला है अर्थव्यवस्था या इकोनॉमी, स्ट्रक्चर अर्थात बुनियादी ढांचा और तीसरा है तकनीक या टेक्नोलॉजी केंद्रित व्यवस्था और उससे जुड़ा हुआ तंत्र, सिस्टम जिसे कह सकते हैं आप। और इसके बाद डेमोग्राफी, हमारी जो आबादी है वह जनसंख्या जो 135 करोड़ के बीच की को उपलब्ध या खासतौर से जो ग्रामीण क्षेत्रों में उपलब्ध संसाधन है उन सबका पोषण, दोहन और उपयोग करने के लायक बना सके। तो इस तरह की जो हमारी आबादी है
जो हमारी जनशक्ति है, इसमें युवाओं की संख्या अधिक है वे, और इसके साथ ही साथ मांग या डिमांड और आपूर्ति का जो चक्र है, इन सबको सम्मिलित करके ये स्तंभ आत्मनिर्भरता के हमें मजबूत करने होंगे, और इसके लिए ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विशेष योगदान सुनिश्चित करना होगा। तो फोन करके बोलो। एक महत्वपूर्ण बात यह है कि जो गांव है वो जो किसान है, जो प्रचुर मात्रा में खाद्यान्नों का उत्पादन करते हैं, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड का यह अनुमान है कि कोविड-19 की चुनौतियों के बावजूद जो ग्रामीण अर्थव्यवस्था है, जिस पर कोविड-19 का उतना प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो ये मानते हैं कि गांव के लोगों पर, जो किसान है, जो कामगार है, वो कोविड-19 से कम प्रभावित है या होंगे। इसलिए यदि हम ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, कुटीर उद्योग को और खास तौर से एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को बढ़ावा दे, तो आने वाले दिनों में देश की अर्थव्यवस्था को एक मेजर बूस्ट मिलेगा, और इस तरह से 2021-22 में बड़े पैमाने पर हम अपनी आर्थिक वृद्धि की दर को व्यवस्थित कर सकेंगे, और जो आर्थिक मंदी है उसके दौर से भी अपने देश को उबार सकेंगे। इसलिए हमें आवश्यक है कि मैथिली शरण गुप्त ने जो किसी समय ग्राम्य जीवन की सुगमता और कम संसाधनों में निर्वाह और जो अभाव के बावजूद जीवन की गुणवत्ता को सरलता के साथ बनाए रखने की जो ग्रामीण जनता की इच्छा शक्ति रहती है, उन सबको देखते हुए आज ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नए सिरे से व्यवस्थित करने की जरूरत है, यह मानते हुए कि कोविड-19 का गांवों पर कम प्रभाव पड़ेगा। इसको स्वीकार कर रहे हैं इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के विशेषज्ञ भी, और देश दुनिया के दूसरे लोग भी जानते हैं कि चिलचिलाती धूप में कठिन परिश्रम करने वाला किसान कोविड-19 की घातक मार से भी उतना प्रभावित नहीं होगा, क्योंकि वहां काम करने वाले जो युवा कामगार और किसान है, उनकी जो प्रतिरोधक क्षमता है, रोग की प्रतिरोधक क्षमता, वह पर्याप्त है। और इस दशा में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने से देश की संपूर्ण अर्थव्यवस्था को अंततोगत्वा मजबूत करने का अवसर मिलेगा, देश को आत्मनिर्भर बनाने का अवसर मिलेगा, और वर्तमान में वैसे भी इन्हीं किसानों की बदौलत देश के पास जो खाद्यान्नों का भंडार है, यदि 2 साल हम जरूरत पड़े तो भी उसको खिला सकेंगे, पूरे देश के लोगों को खिला सकते हैं। जो खाद्यान्न हमारे पास भंडारण में कारण मौजूद है, तो ऐसी कृषि अर्थव्यवस्था को बुनियादी तौर पर मजबूत करने से 2021-22 तक अवश्य आर्थिक मंदी के शिकार होने से काफी सीमा तक उबर सकेगी, और बहुत सारे बिंदु, बहुत सारे अवसर जो कोविड-19 के कारण आर्थिक पैकेज मिलने के बाद ग्रामीण क्षेत्र में मिल रहा है, भारत के गांवों में जो नई आशा की किरण उठ रही है, प्रस्फुटित हो रही है, कुटीर उद्योग और बेहतर कृषि, प्रचुर खाद्यान्न उत्पादन, पशुपालन, डेयरी उद्योग और फूड प्रोसेसिंग जैसे बहुत सारे उद्योग, इसके अलावा आईटी सेक्टर का भी प्रभाव गांवों में बढ़ रहा है। इसलिए
यदि देखा जाए तो रूरल एरिया में जहां मोबाइल फोन प्रयोग करने, स्मार्टफोन प्रयोग करने वाले लोगों की संख्या गांवों में तेजी से बढ़ी है, और खास तौर से यदि शहरों से तुलना की जाए तो गांवों में अब इनके प्रयोग की ओर आकर्षण बढ़ा है। एक दिन इंटरनेट के प्रति भी जो अभिरुचि है और बढ़ जाएगी, और खास तौर से इंटरनेट के फैलाव से जो स्मार्ट फोन है उनकी मदद से हम शिक्षा के क्षेत्र में भी एक अभिनव क्रांति ला सकते हैं ऑनलाइन एजुकेशन के माध्यम से, जिसकी कमी गांवों में हमको अखरती है वह कभी भी दूर हो जाएगी। तो उस दिशा में भी हम सोच सकते हैं, आप कह सकते हैं या स्वीकार करना चाहिए हम लोगों को कि डिजिटल और खास तौर से जो स्मार्टफोन्स की जो हमारी गांवों के लिए कैमरा ऑन करने दो। प्रसार की संभावनाएं है वो निरंतर बढ़ती जा रही है, उस पर भी हमको बल मिलेगा, उसका फायदा ले सकते हैं, और इस तरह से एक डिजिटल रूरल इंडिया का निर्माण भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ गांवों की जो बुनियादी सुविधाएं हैं उनका जो संसाधन है और टेक्नोलॉजी का वहां प्रयोग करके आधारित संरचना विकसित करके, इसके अलावा वहां जो आबादी पहुंची है, कामगारों की आबादी, उनकी जो कुशलता है उसको ध्यान में रखते हुए जिस तरह के उद्योग गांव ग्रामीण क्षेत्रों में, चाहे वो सूक्ष्म हो या छोटे हो या घरेलू उद्योग, सभी को बढ़ावा दिया जा सकता है, और इस प्रकार से बहुत मजबूत भारत, आत्मनिर्भर भारत का निर्माण हो सकता है। इन तमाम बातों के साथ साथ मैं ये सोचता हूँ कि गांवों के कल्याण से, गांवों की आत्मनिर्भरता से शहरों की आत्मनिर्भरता का भी मार्ग प्रशस्त होगा, और इस प्रकार देश की अर्थव्यवस्था और देश के आत्मनिर्भर होने का मार्ग प्रशस्त होगा। इस प्रकार की संभावनाओं को तलाशने के लिए जो यह वेबिनार कोविड-19 एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन रूरल इंडिया आपने आयोजित किया है, इसके लिए आपको मैं साधुवाद देता हूँ, आपका अभिनंदन करता हूँ, और इस वेबिनार का उद्घाटन करता हूँ। मैं ये चाहूंगा कि जो कीनोट स्पीकर है वे उन तमाम बिंदुओं का मुख्य और व्यवस्थित ढंग से विचार रखते हुए सबको जोड़े, और जिनको कि हम सरकार को, बिहार सरकार को और साथ ही साथ केंद्र सरकार को भी भेज सके, क्योंकि हमें यह स्वप्न साकार करना चाहिए। अपनी कविता के माध्यम से किसी समय देखा था, वो इस प्रकार से है, आहा ग्राम्य जीवन भी क्या है, क्यों न इसे सबका मन चाहे, थोड़े में निर्वाह यहाँ है, ऐसी सुविधा और कहाँ है। तो इस तरह से गांवों से ग्राम पंचायतों के अंदर जो आत्मविश्वास, जो आत्मनिर्भरता का संकल्प भरा जाना चाहिए, उसकी जो शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अपनी, और उसके लिए जो विशेष पैकेज 20 देश के सकल घरेलू उत्पाद का 10% है, उससे निश्चित रूप से गांव की तस्वीर भी बदलेगी, और फिर हमारे उद्योगों की खास तौर से जो गांवों में लग सकेंगे उनकी भी तस्वीर बदलेगी, और अंततोगत्वा देश आत्मनिर्भर बन सकेगा, जिसकी हमें वर्तमान में आवश्यकता है। बहुत सारी चीजें जो गांवों की संकल्पना में गांधी जी
देखा करते थे कि गांव आत्मनिर्भर होंगे तो देश को आत्मनिर्भर बनाना आसान होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में तो लोग गांवों में ही रहते हैं। लेकिन ग्लोबलाइजेशन के युग में जिस तरह से परिवर्तन हुआ था, आज ग्लोबलाइजेशन की बाहें सिकुड़ रही है और ग्लोबलाइजेशन ने जो संकट उत्पन्न किया उसको भी दुनिया देख रही है। जो नव उपनिवेशवादी पूंजीवादी देश थे, उनकी हालत कितनी खराब हुई, आज वे कितनी दुर्दशा में है। इसी प्रकार से जो अधिनायकवादी देश थे वे भी प्रभावित हुए। लेकिन यह एक अत्यंत सौभाग्य की बात है कि भारत में जो कोविड-19 के संक्रमण की और साथ साथ बड़ी संख्या में जो दूसरे देशों में मृत्यु दर थी, उसके हिसाब से तुलनात्मक रूप से हमारी दर जो है कम है। फिर भी हमें सोचना होगा कि लॉकडाउन के और सोशल डिस्टेंसिंग के माध्यम से हम मात्र अपने बचाव का उपाय कर रहे हैं। हमें कोविड-19 के साथ रहना होगा, ठीक उसी तरह से जैसे HIV के साथ आज दुनिया रह रही है। वैक्सीन बन जाने के बावजूद भी हर जगह से कोविड-19 महामारी का या वायरस का प्रभाव खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं कहा जा सकता। ऐसी दशा में हमें निश्चित रूप से जो अपनी युवा जनशक्ति है, जो खास तौर से गांवों में रहती है, 65% लोग तो गांवों में है और अब तो बड़ी संख्या में लोग आ गए हैं, बहुत बड़ी संख्या में लोग वापस भी नहीं लौटेंगे। तो गांव और शहर का संतुलन भी हमें देखना है। बहुत तेजी से गांवों का शहरीकरण भी हो रहा है, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जुटाया जा रहा है। इसीलिए अर्थव्यवस्था के साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर, तकनीक संबंधी तंत्र पूरा और हमारी जो शक्ति है, जनशक्ति है, उसकी और साथ साथ डिमांड और आपूर्ति का जो चेन है उसको मजबूत करने की जरूरत है। और इसलिए हम गांवों से अपेक्षा कर सकते हैं, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने से हम आगे बढ़ सकते हैं उस बिंदु तक जहां से भारत के आत्मनिर्भर बनने का मार्ग प्रशस्त होगा। मैं ओपन करता हूँ फ्लोर को, जिससे कि और आगे की जो विमर्श की प्रक्रिया है उसको आप लोग निरंतरता दे सके, उसकी कंटिन्यूटी बन सके। तो इन्हीं शब्दों के साथ शुभकामनाएं देते हुए मैं एक अपनी और पूरा वाणी को विराम विश्व देता हूँ। धन्यवाद। कोविड-19 की समस्या से जूझ रहा है, वहां इस विषम परिस्थिति में भी आपने इससे जुड़े सभी सकारात्मक पक्षों को सामने लाया और हम सबों को उससे रूबरू कराया और बताया कि किस प्रकार से ग्रामीण परिवेश को अपना करके और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत कर हम अपने शहरों का भी विकास कर सकते हैं। अपने इन आशीर्वचनों के लिए मैं आपका बहुत बहुत हृदय से आभार व्यक्त करता हूं सर। अब हमारे बीच हमारे आज के प्रमुख वक्ता, जाने माने अर्थशास्त्री और विद्वान डॉक्टर भानु प्रताप सिंह, जो बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से हैं, उन्हें मैं चाहूँगा, उनका मैं स्वागत करता हूँ। उन्हें मैं बुलाना चाहूँगा कि वो हम सबों के बीच अपनी बातों को रखें और अपने पक्ष को रखें। भानु प्रताप सर, आपका हार्दिक अभिनंदन है। धन्यवाद डॉक्टर दीपक। माननीय कुलपति मगध विश्वविद्यालय बोधगया, आदरणीय प्राचार्य दाऊदनगर महाविद्यालय दाऊदनगर, इस वेबिनार से जुड़े साथी, सम्मानित शिक्षकगण, वेबिनार के प्रतिभागियों एवं प्यारे विद्यार्थियों, आज मैं जिस विषय पे अपना व्याख्यान रखने जा रहा हूं उसका शीर्षक है ग्रामीण भारत की अर्थव्यवस्था पर कोरोना महामारी का प्रभाव, इम्पैक्ट ऑफ कोविड-19 ऑन इकोनॉमी इन रूरल इंडिया। समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए मैं मुख्य रूप से 7 बिंदुओं पर बात करूंगा। सर्वप्रथम विश्व तथा भारत में कोरोना की स्थिति, उसके पश्चात भारतीय अर्थव्यवस्था का अवलोकन, फिर भारत तथा राज्यों में स्वास्थ्य की क्या स्थिति है, स्वास्थ्य हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर का स्टेटस क्या है, उस पर बात करूंगा।
कोविड-19 और इकोनॉमी के बीच क्या-क्या लिंकेजेस हैं, कैसे शॉर्ट रन और लॉन्ग रन इम्पैक्ट पड़ेगा कोविड-19 का, उसके बारे में बात करूंगा। कृषि की तत्कालिक स्थिति के बारे में बात करूंगा। अर्थव्यवस्था तथा ग्रामीण भारत पर कोरोना वायरस से क्या प्रभाव पड़ा, उनसे जुड़े मुद्दे पे बात करूंगा। और अंत में आर्थिक नीतियां जो सरकार ने चलाई हैं तथा उसके ऊपर चुनौतियां क्या-क्या हैं, उस विषय में बात करूंगा। भारत तथा भारत के में कोरोना की क्या स्थिति है या विश्व में, समय की सीमा को ध्यान में रखते हुए इस पे मैं संक्षिप्त रूप से केवल इतना ही कहूंगा कि महामारी भारत के लिए कोई नई चीज नहीं है। आज से 100 साल पहले प्लेग से, स्पेनिश फ्लू से 10 लाख से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन 100 साल के पश्चात अभी क्या चीज है जो कि लोगों को बहुत चिंतित कर रही है, जैसा कि प्राचार्य महोदय और हमारे वाइस चांसलर सर ने बोला कि सड़कों पे बाढ़ आ गई है, लोग ग्रामीण क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं अपने आप को भूख से बचाने के लिए, अपने आप को किसी भी तरह से वो घर पहुंचना चाहते हैं। तो क्यों ये जो रिवर्स माइग्रेशन हो रहा है अर्बन से रूरल एरिया की तरफ, ये क्यों चिंतनीय है? सबसे पहले मैं अभी अर्थव्यवस्था का हाल आप सबके सामने रखना चाहूंगा। अगर आप ग्रॉस वैल्यू एडेड के से अगर आप अर्थव्यवस्था को देखें तो आप ग्रॉस वैल्यू एडेड के टर्म्स में अर्थव्यवस्था को आप जो है 12 सेक्टर्स में बांट सकते हैं। और उन 12 सेक्टर्स में आप पाएंगे क्या कि कंबाइंड जो सर्विसेज से रिलेटेड सेक्टर्स हैं उसका कंट्रीब्यूशन 50% है। उसके बाद मैन्युफैक्चरिंग आता है जो कि 35% कंट्रीब्यूट करता है, और एग्रीकल्चर एंड एलाइड एक्टिविटीज वो सबसे कम 12% कंट्रीब्यूट करता है। अब इसके विपरीत जो है ऑन द अदर साइड आप ये देखिए कि ये जो तीनों सेक्टर्स हैं उसका क्या सेक्टोरल कंट्रीब्यूशन है टोटल एम्प्लॉयमेंट में। तो आप पाएंगे क्या कि सर्विसेज जो कि सबसे ज्यादा ग्रॉस वैल्यू एडेड में कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन वो टोटल एम्प्लॉयमेंट में जो उसकी एम्प्लॉयमेंट इलास्टिसिटी है वो केवल 25% है, मैन्युफैक्चरिंग की 32% है, और एग्रीकल्चर की सबसे अधिक 42 से कुछ ऊपर है। फिगर्स डिफरेंट हो सकते हैं, मैंने जो भी ये फिगर्स बताया ये वर्ल्ड बैंक के फिगर्स हैं, लेकिन जो सबसे चिंतनीय विषय है वो ये है कि जो टोटल एम्प्लॉयमेंट है, हमारे टोटल एम्प्लॉयमेंट में 74.26% जो एम्प्लॉयमेंट है वो वनरेबल एम्प्लॉयमेंट के कैटेगरी में आता है, जिनके पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं है और हमेशा उनके एम्प्लॉयमेंट के ऊपर थ्रेट रहता है। अब हम इस चीज को देखना है कि 70 साल के इकोनॉमिक प्लानिंग में हम कहां तक पहुंचे हैं। तो सबसे पहले आप अगर पूरे स्टेट्स के पर कैपिटा इनकम को देखो तो आप पाओगे क्या कि हमारे देश और जो यूनियन टेरिटरीज है, जो स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज हैं, उनके बीच पर कैपिटा इनकम में जो है वो वाइड जो है इनइक्वालिटी है। जो सबसे हाईएस्ट स्टेट है पर कैपिटा इनकम के मामले में वो गोवा है, जिसकी पर कैपिटा इनकम 3,70,000 है, और जो सबसे लोवेस्ट अपना बिहार है जिसकी पर कैपिटा इनकम 30,000। तो ये वाइड इनकम इनइक्वालिटी है। पॉवर्टी को आप देखो, 2011-12 के डेटा को मैं कोट कर रहा हूं क्योंकि उसके बाद तो एनएसएसओ का कोई डेटा अवेलेबल नहीं है। तो उस पे भी अगर आप देखोगे तो आप पाओगे क्या कि जो रूरल पॉवर्टी है वो अर्बन पॉवर्टी से अधिक है, और इस पैंडेमिक के बाद इसके और बढ़ने की आशंका है। अब इंडिया के हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में मैं कुछ बिंदुओं पे बात करना चाहता हूं कि अगर आप क्यूमुलेटिव केसेस के बेसिस पे आप देखो तो आप पाओगे क्या कि सबसे ज्यादा जो प्रभावित देश हैं कोरोना महामारी से वो या तो यूरोपीय देश हैं या तो अमेरिका है, ठीक है। और उनके कंपैरिजन में अगर अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अगर आप कंपेयर करो, अगर आप, मैं वर्ल्ड बैंक के कुछ डेटास को कोट करूंगा, नंबर ऑफ फिजिशियन, नंबर ऑफ नर्सेस, नंबर ऑफ हॉस्पिटल बेड पर 1000 पॉपुलेशन, तो आप पाओगे क्या कि सबसे जो बुरी कंडीशन है इन सभी देशों में वो इंडिया की है। अगर राज्यों की स्थिति को आप देखो तो राज्यों की स्थिति जो है ऑल इंडिया जो एवरेज है उससे भी बुरी है। तो उसके पीछे कारण क्या है कि जो ऑलरेडी सैंक्शन